Good morning, students of class 9th. Today I am going to teach you English literature, chapter 9, The Bond of Love. Okay, this lesson has been written by Kenneth Anderson. Okay, about the author Kenneth Anderson, full name Kenneth Douglas Stewart Anderson, was an India born British writer, hunter. He was born on 8 March 1910. His father, Aryan Stewart Anderson, was an officer in Pune. Anderson studied at Bishop Cotton Boys. Okay. School and St. Joseph's College, Bangalore. He was also sent to the UK for higher education, but he quit studies and come back to India where he worked on various posts. He was a hunter who wrote books about his adventures in the jungles of South India. His works include 9 Man-Eaters and 1 Rogue, Man-Eaters and Jungle Killers. The Call of the Man-Eaters, This is the Jungle and the Tiger Roars. Okay, students, about the lesson. Okay, the bear cub was too young to survive without his mother's death. He was brought home by the author and presented to his wife. The wife loved and reared it as her own baby. The cub, christened as Bruno and later as Baba by the author's wife, too, proved himself as the best cub and in return gave her equal love. He outgrew and couldn't be kept in the house. They were forced to send him to the Mysore Zoo. But the wife could not bear Baba's separation. What happens next? Let's read. Okay, before you read, can there be love and friendship between human beings and wild animals? Let us read a fascinating account of an orphan sloth bear that was rescued by the author. Sloth bears inhabit forested areas, including the tropical rain forests of India and grasslands at lower elevations. Sloth bears have very shaggy hairs and long muzzles. Using their claws to dig, they can have used their lips to form a tube, which can go their lips to form a tube which can go deep into the ground or into hard to reach areas like dead trees for their food. Their main food is termites. Okay, you can hear them shook up their food from several feet away. Okay, first stanza. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her baby accident. I got him for her by accident. 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some escaped. Except we thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out painting in the hot sun. ओके यानी ये जो है ऑथर हैं बताते हैं कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक पालतू स्लोथ भालू ब्रूनो से शुरुआत करूँगा क्योंकि मुझे वह उसके लिए पत्नी के लिए संयोगवश मिला था. ओके, और मैंने वो अपनी पत्नी को दे दिया था. पत्नी ने उसे पेट बना लिया था, अपना पालतू बना लिया था, भालू का बच्चा.
2 वर्ष पूर्व हम मैसूर के पास गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे। लोग जंगली सूअरों को उन्हें गोली मारकर अपने खेतों से खदेड़ रहे थे। कुछ मार डाले गए थे और कुछ बचकर भाग गए थे। हमने सोचा कि सब कुछ समाप्त हो गया है कि अचानक एक स्लोथ भालू धूप में हांफते हुए बाहर आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर warned only, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. यानी मैं किसी स्लोथ यानी भालू को बिना बातें गोली नहीं मारूंगा। ओके, लेकिन दुर्भाग्य से बेचारे पशु के लिए मेरे एक साथी ने इस प्रकार नहीं महसूस किया और तुरंत भालू को वहीं गोली मार दी। ओके, तुरंत उसको भालू के बच्चे को गोली मार दिया। नेक्स्ट स्टेंजा। एज वी वॉच्ड द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज्ड टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव एंड लेफ्ट द prostrate body. Then he saw it was a, please turn over, baby bear that had been riding on its mother back when the sudden shot had killed her. The little creature ran around its prostrate parents, making a pitiful noise. Okay. थर्ड पैरा में जो लेखक है वो कहते हैं कि जब हमने गिरे हुए पशुओं को देखा तो हम यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि उसके कमरे से काला लोम यानी रोएदार वस्तु कुछ उतरा है और उसने धराशायी शरीर को छोड़ दिया है। तब हमने देखा कि यह भालू का शावक था, यानी भालू का बच्चा था, जो कि जब अचानक गोली के आघात ने उसकी माँ को मारा था। ठीक है, उसकी माँ को, भालू के बच्चे की माँ को मारा था तो वह उसकी पीठ पर चढ़ा हुआ था। वह छोटा जीव एक दयनीय शोर करते हुए अपनी धराशायी माँ के चारों ओर दौड़ रहा था। ओके, फोर्थ स्टेंजा। I ran up to it to attempt a capture. It scooted into the sugarcane field. Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. फोर्थ स्टेंजा में लेखक कहते हैं कि मैं उसे पकड़ने के प्रयास में उस तक दौड़ा और गन्ने के खेत में भाग गया, और वो स्लोथ जो था भालू का बच्चा वो गन्ने के खेत में भाग गया। आखिरकार मैं उसे गर्दन से पकड़कर दबोचने में कामयाब हो गया, जबकि उसने मुझे काटने और लंबे मुड़े हुए पंजों से नोचने की बहुत कोशिश की। ओके, फिफ्थ स्टेंजा। वी पुट इट इन वन ऑफ द gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cow was a boy, she christened it Bruno. इसमें जो लेखक हैं वो बताते हैं कि हमने अपने साथ लाए बोरों में से एक बोरे में इसे डाल लिया, यानी भालू के बच्चे को डाल दिया, ब्रूनो को डाल दिया। जब मैं वापस बेंगलोर आया तो मैंने इसे बाकायदा अपनी पत्नी को उपहार में दे दिया। वह प्रसन्न हो गई। उसने तुरंत एक रंगीन रिबन उसके गले में डाल दिया। ओके, और यह जानने के बाद कि शावक लड़का है, उसने इसका नाम ब्रूनो रख दिया। ओके, यानी इस भालू के बच्चे का नाम उसकी पत्नी ने ब्रूनो रख दिया। 6. Bruno soon took to drinking milk from a bottle. It was a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else, and everything is the right word, for he ate paradise made from any
ingredients, vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry, and rice, regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream, etc., etc., etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, okay, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down within relish. यानी सिक्स स्टेंजा में लेखक कहते हैं, देखिए सिक्स स्टेंजा में लेखक ने बताया है कि ब्रूनो ने शीघ्र ही बोतल से दूध पीना सीख लिया। उसने बस एक कदम और बढ़ाया और कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। सब कुछ की ही सही शब्द है, क्योंकि वह किसी भी संगठक से बना दलिया, सब्जियां, फल, गिरियाँ, मांस, खासतौर से सूअर का मांस, सब्जी, चावल, बिना मसालों व मिर्ची की परवाह किए रोटी, अंडे, चॉकलेट, मिठाई, पुडिंग, आइसक्रीम वगैरह वगैरह वगैरह, यानी बहुत सी चीज़ें खा लेता था जो भी घर पे बनती थी। जहाँ तक कि पेय की बात है, पीने वाली चीज़ों की बात है, वो दूध, चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, बातित जल, छाछ, बियर, अल्कोहल वाली शराब, वस्तुतः कुछ भी द्रव, एनीथिंग, यह सब स्वाद के साथ ले जाता था। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा। द बियर बिकेम वेरी अटैच्ड टू अवर टू Alsatian dogs and to all the children of the tenant living in our bungalow. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. Okay, सेवंथ स्टेंजा में लेखक ने बताया है कि भालू हमारे 2 अल्सेशियन कुत्तों से और हमारे बंगले में रहने वाले किराएदारों से के सारे बच्चों से बहुत घुल मिल गया था। जब वह छोटा था तो उसे एकदम खुला छोड़ दिया जाता था। वह अपना समय खेलने, रसोई घर में दौड़ने तथा सोने के लिए हमारे बिस्तरों में जाने में बिताता था। ओके, एट्थ। वन डे एन एक्सीडेंट befall him. I put down poison barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. Okay, Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. Paralysis set into the extent that he could not stand on his feet, but he dragged himself on his stumps to my wife, who called me. I guessed what had happened. Off I rushed in the car to the vet's residence. A case of poisoning, tame, beer, barium, carbonate. What to do? ओके, अब इसमें क्या बताया गया है कि एक दिन उसके साथ दुर्घटना घटित हो गई। ठीक है, क्या दुर्घटना घटित हुई कि मैंने चूहों तथा चूहियों जो कि मेरे पुस्तकालय में घुस गए थे, उनको मारने के लिए जहर बेरियम कार्बोनेट रख दिया था। ओके, ब्रूनो पुस्तकालय में आ गया, दाखिल हुआ, जैसा कि वो बहुधा करता था, हर जगह जाता था, और उसने कुछ जहर खा लिया। उसे इस हद तक लकवा मार गया कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, लेकिन वह अपने पिछले पैरों पर घसीटता हुआ मेरी पत्नी तक, जिसने उसे पुकारा था, ठीक है, बुलाया था, वहाँ पहुँच गया। मैंने अनुमान लगा लिया कि क्या हुआ होगा। मैं कार से पशु चिकित्सक के निवास को दौड़ गया। जहर का मामला था, पालतू भालू, बेरियम कार्बोनेट, क्या करें। ओके, नाइन्थ स्टेंजा। Out came his medical books and a feverish reference to index. Begin. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Oh yes, Baba. Barium salts. Oh, barium carbonates. Symptoms. Paralysis. Treatment. Injections of just a minute, sir. I will bring my syringe and the medicines. Okay. अब देखिए नेक्स्ट पैरा में बोलते हैं,
A dash back to the car. Bruno is still floundering about on his stumps, but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing with heaving flanks and gaping mouth. 9th स्टेंजा में लेखक कहते हैं कि उसकी चिकित्सा, यानी मैं जब डॉक्टर को ले आया तो उसकी चिकित्सा के लिए उन्होंने पुस्तक बाहर निकाली और अनुक्रमणिका में उत्तेजनापूर्ण संदर्भ शुरू हुआ। कौन सा विष तुमने खाया? कौन सा विष तुमने कहा था श्रीमान? बेरियम कार्बोनेट। अरे हाँ हाँ वही ना, बेरियम साल्ट। ओहो, बेरियम कार्बोनेट। लक्षण लकवा। अगर इस जहर को खा लें तो इससे लकवा हो जाता है, लकवा मार जाता है। उपचार के लिए सुइयाँ। बस 1 मिनट श्रीमान, मैं अपनी सिरिंज और दवाएं अभी लाता हूँ। ठीक है, डॉक्टर ने कहा। तेजी से कार की ओर झपटना। ठीक है, ब्रूनो अभी भी अपनी पिछली टांगों पर चलने का संघर्ष कर रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से तेजी से कमज़ोर होता जा रहा था। कुछ उल्टी, भारी सांस, भारी पुट्ठों से और खुले मुंह से, यानी ब्रूनो की तबीयत खराब होती जा रही थी। होल्ड हिम एवरीबॉडी, इन गोज द हिपोडर्मिक। ब्रूनो स्क्विल्स 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. 10 minutes later, conditions unchanged. Another 10 cc injected. 10 minutes later, breathing less stertorous. Bruno can move his arms and legs a little, although he can stand yet. 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feat. He looks at us disdainfully, as much as to say, "What's barium carbonate to a big black bear like me?" Bruno is still eating. Okay. यानी इस स्टंजा में बताया गया है, लेखक कहते हैं कि ब्रूनो के इलाज के लिए डॉक्टर तो आ गया था अब, लेकिन डॉक्टर क्या बता रहे हैं? उन्होंने बताया कि पकड़ो उसे, यानी ब्रूनो को कस के पकड़ो। लंबी सुई अंदर गई, यानी वो सुई इंजेक्शन लगा रहा है ब्रूनो के। ओके, ब्रूनो चीखता है। 10 cc विषहर उसके तंत्र में एक भी बूंद बर्बाद हुए प्रवेश करता है। 10 मिनट बाद सांस कम खर्राटेदार, कम कष्टकारी। ब्रूनो अपनी भुजाएं और टांगें थोड़ी हिला सकता था, यद्यपि वह अभी खड़ा नहीं हो सकता था। 30 मिनट बाद ब्रूनो उठ जाता है और अच्छा भोजन करता है। वह हमको तिरस्कार पूर्वक देखता है, जैसा कि कहना चाहता हो, मेरे जैसे बड़े काले भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या है? ब्रूनो अभी भी खा रहा है। ओके। 11 स्टेंजा। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil, which I had drained from the sump of the Stubaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effect whatever. ओके, यानी क्या होता है? उन्होंने बताया कि एक बार उसे करीब 1 गैलन पुराना इंजन का तेल, जिसे मैंने स्टूबेकर कार के इंजन की तली से निकाला था, उसे दीमकों के आक्रमण से बचने के लिए रखा था, लेकिन वह तुरंत सारा पी गया। यानी ब्रूनो जो भालू का बच्चा था इस तेल को पी गया, लेकिन इसका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। ओके। 12th stanza. The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. He had equaled the Alsatians in height and had ever outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful, and he was very fond of us all. Above all, he loved my wife, and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustan word signifying small boy.
and he could do a few tricks too. At the command Baba Rishal or Baba Box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. Give him a stick and say, Baba, hold gun. And he pointed the stick at you. Ask him, Baba, where's baby? And he immediately produced and cradled. Please turn over. Affectionately, a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed, but because of the tenant children, poor Bruno or Baba had to be kept changed most of the time. Okay, यानी 12th स्टेंजा में बताया गया है कि महीने बीतते गए और ब्रूनो जब यहाँ आया था आकार में उससे कई गुना बड़ा हो गया था. ओके, वह ऊंचाई में अल्सेशियन कुत्तों के बराबर हो गया था और यहाँ तक कि उनसे भी बड़ा, लेकिन उतना ही प्यारा, उतना ही शरारती, उतना ही मनमौजी. और वह हम सबको बहुत प्यार करता था. सबसे बढ़कर वो मेरी पत्नी को बहुत प्यार करता था और वह भी उसे बहुत प्यार करती थी. उसने उसका नाम ब्रूनो से बदलकर बाबा, एक हिंदुस्तानी शब्द जिसका अर्थ है छोटा लड़का, रख दिया. और वह कुछ करतब भी कर सकता था आदेश पर कि बाबा कुश्ती लड़ो या बाबा मुक्केबाजी करो, या वह किसी से भी जो कि खेल खेल में लड़ाई को आगे आता था उससे ताकत से भिड़ जाया करता था. उसे एक छड़ी दे दो और कहो बाबा बंदूक पकड़ो, तो वह छड़ी को आपकी ओर तान देता था. यानी वो सब कुछ समझता था. उससे कहो बाबा बच्चा कहाँ है, और वह तुरंत लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे उसने ध्यान से अपने घास फूस के बिस्तर में छुपाया होता था ले आता और उसे प्यार से झुलाने लगता. लेकिन किराएदारों के बच्चों के कारण बेचारे ब्रूनो या बाबा को अधिकतर समय जंजीर से बांधकर रखना पड़ता था. ओके, बच्चों के कारण उसको जंजीर से बांधकर रखना पड़ता था. नेक्स्ट पैराग्राफ 13. Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to keep at home. After some weeks of such advice, she at last consented hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied, yes. The tame bear for his collection? He replied, yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. ओके, यानी 13 स्टैंजा में यह बताया गया है कि तब मेरे बेटे ने और मैंने अपनी लेखक की यानी पत्नी को और दोस्तों ने भी बाबा को मैसूर के चिड़ियाघर को देने की सलाह दी. वह इतना बड़ा होता जा रहा था कि उसे घर पर नहीं रखा जा सकता था. कुछ हफ्तों तक ऐसी सलाह के बाद उसने अंत में स्वीकृति दे दी. जल्दबाजी में और इससे पहले वह अपना मन बदल ले, एक पत्र चिड़ियाघर के प्रबंधकर्ता को लिख गया. ओके, क्या तुम्हें अपने संग्रह के लिए एक पालतू भालू की आवश्यकता है? उसने उत्तर दिया, हाँ. ओके, चिड़ियाघर ने एक ट्रक में 87 मील की दूरी से मैसूर से एक पिंजड़ा भेजा और बाबा को इसमें भेज दिया गया. ओके, नेक्स्ट स्टेंजा. आफ्टर दैट फ्रेंड्स visiting Mysore were begged to make a point to going to the zoo and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and sad. All the keepers at the zoo said he was fretting. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. यानी इस स्टंजा में
लेखक कहते हैं कि उन्होंने हमको बताया कि हम सबको उसकी बहुत याद आई। ओके, जब ब्रूनो को जू वाले ले गए, सर्कस में ले गए, तो हम सबको ब्रूनो की बहुत याद आई थी। ओके, और लेकिन एक अर्थ में हम भार मुक्त भी हो गए थे। ओके, यानी भार मुक्त इसलिए हो गए थे क्योंकि वो बड़ा हो रहा था। मेरी पत्नी अधीर हो गई थी, वह रोती थी और चिड़चिड़ी रहती थी। पहले कुछ दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया। तब उसने प्रबंधकर्ता को कई पत्र लिखे, बाबा कैसा है, जवाब आए अच्छा है, लेकिन चिड़चिड़ा हो गया है, वह भी खाना नहीं खाता है। ओके, 15 स्टैंजा। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग Mysore were begged to make a point going to the zoo and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and sent all the keepers at the zoo said he was fretting for 3 months. Okay, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. ओके, यानी इसके पश्चात मैसूर जाने वाले मित्रों से अनुरोध किया गया वे चिड़ियाघर जाएं और देखें कि बाबा कैसा है। ओके, उन्होंने सूचना दी कि वह ठीक है लेकिन बहुत पतला व दुखी लगता है। चिड़ियाघर के सभी रक्षकों ने कहा कि वह चिड़चिड़ा हो गया है। 3 महीने तक मैंने अपनी पत्नी को मैसूर जाने से रोके रखा। तब उसने एक दिन कहा, मुझे बाबा से मिलना है, या तो आप मुझे कार से ले चलें या फिर मैं खुद बस या रेलगाड़ी से चली जाऊंगी। इसलिए मैं उसे कार में ले गया।